Today's topic is one of my favorite and it is very, very interesting. See, we all are in a business of prediction. हम लोग कहीं ना कोई तरीके से एक ऐसे बिजनेस में है जहां पे हमें कुछ ना कुछ चीजों को प्रेडिक्ट करना है। और जो व्यक्ति जितनी सर्टेनिटी प्रेडिक्ट कर पाता है वही उतना ज्यादा सक्सेसफुल होता है। हर वो व्यक्ति इन हिस्ट्री, इफ वॉट एवर दे हैव क्रिएटेड, वेदर यू नेम एनीवन, बिल गेट्स created Microsoft, a system, a software which was required by the humanity well before time. So he was thinking much ahead. So कहने का मतलब है क्या चीजें प्रेडिक्टेबल है और क्या चीजें आप बना सकते हैं और क्या चीजें आप क्रिएट कर सकते हैं जो कि होने वाली है। Yes, we all are not fortune tellers, neither we are people who can create the future, neither we can predict the future, but there is something which clients or every individual like is predictable. So certain steps, certain things, certain tools, certain parameters, if you can give, because of which you can become more predictable, or whatever you are telling that becomes predictable, I think that is going to make a lot of sense. And that will help not only you in your business, but also a client to actually do more business with you. And we all know that when a client is doing more business, he is the one who is getting benefit out of it. But the only thing is, he is, because of the emotions, some or other time, no, he is thinking whether this is the right time to invest or not, whether if he invests, if the stocks or the prices or the markets come down or not. So this uncertainty is there. So as a mutual fund distributor, as an advisor, or as a friend, or as a coach, you will have to become person who is actually helping, not in a prediction, but actually helping in creating that predictability. Or maybe no, you are able to create that certainty. I will say the certainty is the more appropriate word. So you will have to create circumstances like this is the reason why I think the market will fall is certain. This is the reason why I think that the market will go up is the reason. So this certainty, when you give it to a client, he will give you business. Clear? Making sense? So in today's session, we are doing only one thing: how we can become certain with certain strategies. So today the strategy is technical analysis. Okay. And there are other strategies. There are 11 such games out of all the 21 games, which actually help you to give certainty to a client. Okay. So in order to give that certainty to a client, you need to use 1, 2, 3, 4, 5, 6, like 11 things. And today we are going to talk about that one. And this is very, very important. Okay. So we are going to talk. So let me ask you a question before that. Almost, I think it is 45 years, the Sensex is there. Okay. Sensex from last 1979 till date is from 100, it has become, let's say, 80,000, 83,000, whatever the Sensex is. Now, what is the rate of return it has generated? You can unmute yourself or you can write it in the chat box. 13 to 15%, sir. What is the Sensex today? See, 76. predictability, huh? We are talking about how to make things certain. 76 to 500 or 600. See, it was 100. And now it is, what is the Sensex today? 76, 500 or 600, sir. 76,000? 600 maybe. Okay, 76, 600, I'm writing. Yeah. And this is 45 years, approx. Tell me, you will have to tell. The normal calculator, it shows 15.9%. Yeah, it is 16%. Okay, so in 45 years, 15.9% is the return. Now the next question is,
For all those people who answer this, other than the volatility coaches, because I have already given that book, so I will courier a book of behavior finance, which is written by me and which is like on the Vikram Betal stories. And each story will have a financial lesson, which you can share with your investors or small kids so that no, they become interested into financial topics. Now, after 45 years, if this is the same rate of return, what will be the Sensex? The reason why I am asking you, technically we will do everything and we will make things more certain for an investor, for a client and for ourselves. But before that, let's see what is actually certain. People want certainty. लोगों को चाहिए आश्वासन, लोगों को चाहिए स्थिरता, लोगों को चाहिए एक ऐसी चीज जो हो सकती है, ऐसा नहीं कि हो सकती है. अभी आप आज से बहुत साल पहले बोलते थे कि फोन बिना वायर का होगा, मोबाइल फोन जैसी चीज होगी. Before 1997, nobody would have believed. Or when people used to think Earth is flat, nobody used to believe that Earth will be round. But अभी हम लोग बात करते हैं, सोचते हैं. Somebody has written 6,05,000. Approximately 6 lakhs. नितिन बंसल. गलत जवाब है आपका. गलत जवाब. After how many years, sir? Same 10 45 years. years. Today's आज का सेंसेक्स 15.9% आया है, 15.90. सेम रिटर्न if another 45 years आता है तो क्या होगा Okay, 45 सेंसेक्स? years. हाँ, मैं बताता हूँ. 45 years. Another 45 years. हाँ, Nitin is coming. Yes, Nitin, it is 4 crore approximately 6 12 lakh crore. 15,000. So 4 Nitin crore is, 12 lakh. yes, Nitin, you are right. So Nitin ka, sorry, it's 6 crore. Yes, Siddharth also is right. So friends, this is how you make. So if I would have told you in 45 years, Sensex will be 6 crore. Actually, this is 5 crore 81 lakhs. So Mr. Ketan is absolutely appropriate. So ठीक है, 5 crore 80 lakhs or 6 crore is that's one other part. But the important part, if I tell you it will become 6 crore, nobody will believe. Yes or no? But when I say, see, this is what has happened. If same thing happens for next 45 years, just by using this calculator, you have to do a simple maths. It becomes 6 crore. Then people will say, no, the return which has come now, it looks difficult. Probably it will not be 15.9%. Then I say, let's take 12%. So if you write 12%, then also it is 1.25 crore. Then say, no, even 12 is looking difficult. We think even 10% will be there. So in case of 10% also, it is 55 lakhs. अभी तक हमारा सेंसेक्स 1 लाख नहीं हुआ है, 2 लाख नहीं हुआ है, पर हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं सेंसेक्स ऑफ 55 lakhs to 6 crore. So in your communication, if you are able to make things certain for a client, certain for anyone, that can be a child also, he is more convinced. Making sense? So today's session is about making things certain for an investor or for a person whom you are communicating with. And we will use certain tools because of which you will be able to do that. Making sense? Are you interested? Yes, no, kuch kahiye. And Yes, this sir. session is absolutely only 59 minutes. Huh? I will end Yes, the sir. session जैसे ही 60 हो जाएगा. ठीक 5 बजे we will close it at any cost. So इसके लिए let's directly go to the practical part only. ठीक है? And we will see how this works. अच्छा, पहले बताइए, how many of you are know something about technical analysis, charts and all this stuff? Nothing. कितने लोग थोड़ा बहुत जानते हैं, करते हैं? No idea, nothing. आपने कौन सा बुक बोला? Which book? I did not. अच्छा, Behavior Finance. Okay. निशांत अपना नंबर दे दो. Probably
Mr. Ketan will give his address to you and you can actually courier him a book. ठीक है? So Nishant will write his phone number and please SMS your address to him. Anyways, so मैं आपको क्या बोल रहा था कि हाँ, टेक्निकल एनालिसिस. Technical analysis is something which most of the people or many of the people think that no, it is about short term, it is about not very, not that no, people you can think about long term and certain things like that. Okay. But when you talk about technical analysis, you need to talk about one gentleman. और उनका नाम है मिस्टर फिबोनाची. ओके. फिबोनाची क्या है? लियोनार्डो फिबोनाची ये एक he is a very very famous person and he is the one who has actually called the father of technical analysis and he analyze certain thing in the nature. इस nature में बहुत सारी चीजों एक proportion में है, एक ratio में है. जैसे flowers के petals, okay, which is like 3, 5, 21 and daisies 34. Similarly, he also did an experiment wherein उन्होंने दो खरगोश को एक संग एक केज में रखा और फिर उसके बाद में फिर दो 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 करके रखा. तो उन्होंने देखा कि उन सब की फैमिली कुछ दिनों के बाद एक ही प्रपोर्शन में बढ़ रही है. It is not that somebody is grown to 10 and somebody is grown to 2 or 5. So every family will be growing in the same proportion. Okay. And that is again like 1, 2, 3, 5, 8 and so on. Which means the previous number plus the previous number. Like 0 plus 1 equals to 1, 1 plus 1 equals to 2, 1 plus 2 equals to 3, 2 plus 3 equals to 5 and 3 plus 5 equals to 8 and so on. और ये 5 plus 8 equals to 13 होगा, which is 11 I have written, but it will be 13. So इस तरीके से he observed this and based on this he created this whole system and whole technical analysis. और हम लोग उसी को basis करके we will be doing our study. So I am not getting into the details of this, but what I will do is I will just share with you how things work. उससे पहले I will just share with you कि किस तरीके से ये चार्ट वर्क करते हैं. So let me show you. And then we will also play a little game also. Okay. So what I'm doing, I will just take you to a website which is called investing.com. So you can actually go to investing.com or maybe moneycontrol.com and all any of these websites. Okay. So once you go there, you can open this. तो इसके अंदर में ये जो charts वाला part है ना, okay, anywhere wherever you go, and under this there is a thing called live chart. So once you click this, you land on a page which is I'm sharing this link also with all of you, so that if you all wish, you can actually so this is the link. If you click, you will be going to that same chart where I am right now. So on this chart, what happens, you will have to, I hope you all can see this, na? तो फिर से share कर दूं. Is the chart visible to you? Just a second. Yes, sir. Yeah, just a second.
सर ना, साउंड नहीं है आपका, साउंड क्लोज हुआ है। तो आप पहले बोलिए ना। अच्छा ठीक है। कई बार आपने ये देखा होगा कि एक टीवी में एनालिस्ट होते हैं, वो बोलते हैं कि 7,600 के लेवल पे आप बेच दीजिएगा, और 7,000 और 7,700 हो जाएगा तब आप खरीद लीजिएगा। और 7,600 में बेचकर आप फिर जब नीचे सॉरी 76,000 में आप बेच दीजिएगा, और फिर जब 73,000 हो तब खरीद लीजिए। या फिर आप, लेकिन वापस आपको खरीदना है तो या फिर 77,000 में ही खरीदिएगा। तो ये क्यों कहते हैं ऐसा, तो वो चीज हम समझाएंगे आपको। जैसे समझ लीजिए मैं इस बिल्डिंग के 6th फ्लोर में हूँ, तो इस 6 तल्ले में जो हमारा ग्राउंड फ्लोर है, जो नीचे वाला फ्लोर है, इसकी ये जमीन से इट इज ऑन अ लेट्स से 10 × 6 60 फीट की हाइट पे है, ठीक है। और ये जो हमारी सीलिंग है ये 70 फीट की हाइट पे है, 10 फीट अगर मैं एक ऑन एन एवरेज पकड़ता हूं तो कहने का मतलब है, अगर मैं कहता हूं कि अगर आप 60 फीट पे हो तो इन्वेस्टेड रहो, लेकिन जैसे ही 70 हो जाए आप बेच दो। फिर उसके बाद जब 71 होगा हम फिर से खरीदेंगे। क्यों 71 में खरीदेंगे? क्योंकि 71 में फिर मैं 7th फ्लोर में चला जाऊंगा। तो 7th फ्लोर में जो हाइट है हमारी 70 टू 80 के बीच में है, तो मार्केट है ना इसी 60 टू 70 के बीच में यहां घूम रहा है, और 70 टू 80 के बीच में जब वो 7th फ्लोर में हो तो होगा तब घूमेगा, और फिर 80 टू 90 घूमेगा जब वो 8th फ्लोर में होगा। सिमिलरली ईच फ्लोर विल हैव हिज ओन एरिया, ओन रेंज। इस फ्लोर का एक बॉटम है और एक टॉप है, अगले फ्लोर का भी एक बॉटम और एक टॉप होगा। तो टेक्निकल एनालिसिस इसी सिद्धांत पे बना हुआ है, ऑन दिस प्रिंसिपल ओनली, दैट this is going to be the low and this is going to be high. Okay, so now, and the second part is about the trend. So if the trend is up, it will remain up, and if there is a trend reversal, if it is down, it will go down. So that is what is very important to understand, that when the trend goes up, it is up, and when the trend is down, so we really need to understand and become certain about a particular trend. अगर आप ट्रेंड प्रेडिक्ट कर पाते हैं, ट्रेंड को समझ पाते हैं, तो you will be able to create a certainty in your talk and your communication in whatever you are doing. Now, what we will be doing through this technical chart is, as I explained to you, and probably I was on mute. So what we have done in this case, we have just taken exponential moving average, EMA लिया है। अगर आप लोग को जरूरत हो तो इसकी रिकॉर्डिंग एक बार फिर से देख लीजिएगा। हम लोग ये वाला सेक्शन क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं EMA। दिस इज कॉल्ड द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस। ओके, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस मतलब लास्ट 13 डेज का एवरेज का एक डॉट बनता है, फिर अगले दिन उसके पहले वाले 13 डेज का, ऐसे करते करते व्हाट यू सी दिस रेड लाइन इज अ 13 डे मूविंग एवरेज। अब हम लोग इसके अंदर में क्या देखते हैं कि एज एंड व्हेन, अभी देखिए आप 20 दिसंबर 2024 को क्या हुआ, और इनफैक्ट उससे पहले ही 17 दिसंबर को फर्स्ट टाइम इस रेड लाइन से नीचे गया था बाजार, फिर दूसरी बार फिर से नीचे गया, और तीसरी बार फिर से नीचे गया, विच मीन 19 दिसंबर को आप आराम से प्रेडिक्ट कर पाते कि ये मार्केट यहां से मंदा है। ओके, तो ये आरवीसीसी के जो पैरामीटर्स हैं उसमें से पहला पैरामीटर ये है। इसके बाद में और भी जो 8 पैरामीटर्स हैं वो हमारे न्यूज़लेटर में हर संडे को आपके संग में शेयर करता हूं। तो आप अगर ये 8 के 8 पैरामीटर्स अगर हम लोग को नेगेटिव नजर आते हैं, तो वी कैन सी दैट द मार्केट मे बी नेगेटिव। और ये 8 के 8 10 के 9 के 9 पैरामीटर्स अगर पॉजिटिव नजर आते हैं, तो वी कैन प्रेडिक्ट that, or we can be certain that the market is going to go up. So as of now, current scenario में this is something which is negative. यहाँ बीच में देखिए 2 दिन ऊपर गया लेकिन तीसरे दिन फिर डाउन हो गया। So we are unable to see a consistently minimum 3 days up होना चाहिए, अपर अप को ब्रेक करना चाहिए, तभी जाके we can be certain that the market is going to go up. सो जब तक ये ट्रेंड ऐसा रिवर्सल नहीं होगा, इस रेड लाइन के ऊपर में 3 डेज ऊपर नहीं जाएगा, वी कैन नॉट बी सर्टन दैट द मार्केट ट्रेंड्स हैव चेंज्ड। होपफुली बजट तक शायद ऐसे रहे, बजट के दिन या बजट के कारण कुछ ना कुछ प्लस माइनस होगा तो होगा,
बट एज ऑफ नाउ नेक्स्ट वीक ये पूरा का पूरा ट्रेंड, ऑल्दो लास्ट दो ट्रेडिंग सेशंस अच्छे रहे हैं, बट स्टिल आप देखो वो 13 डे मूविंग एवरेज को तोड़कर ऊपर नहीं गया है। इससे पहले हम लोग और एक देखते हैं, नहीं पहले ये दिस वाज अराउंड 10th अक्टूबर। सो 10th अक्टूबर को भी अगर आप देखें उससे पहले ही हो गया था, 3rd अक्टूबर के 4th अक्टूबर एंड 5th अक्टूबर, तीनों दिन इट वाज कंटिन्यूअसली डाउन। सो हम लोगों का एक बिगर जो आरवीसीसी पैरामीटर्स के हिसाब से, बाकी पैरामीटर्स के हिसाब से 10th अक्टूबर वाज अ डेट वेयर इन नो द मार्केट ट्रेंड्स वेंट डाउन, और तब से लेके कंटिन्यूअसली अभी तक इट इज कंटिन्यूअसली डाउन एंड डाउन ओनली। सो इस लेवल पे देखिए क्या था, करीबन निफ्टी वाज 25,000 and currently the nifty is 23,000. So more or less 22,000 2,500 nifty levels have corrected from that place. So similarly, if you want to see the upward trends, okay, जैसे यहाँ पे आप देखिए रेड लाइन कंटिन्यूअसली अप ही है, बट मेजर नीचे से ऊपर कब आया, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, या दिस डेट। Okay, so on this particular date, if you see, which is January 2024, okay, 31st January 2024 को from there continuously 3 days it went up, और देखो तब से लेके अभी तक it is all up 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 and up। हाँ, उसके बाद में यहाँ पे it came down a little bit and so on and so forth। So basically major trends you can understand, okay, yearly, मतलब in this whole 2024 January it gave a upward trend, और January से लेके till 10th of October it was all positive। 10th of October को there is a negative trend which has come, और a confirmed negative trend again which has come is again on 20th of December। So दो नेगेटिव ट्रेंड आ गए हैं। अभी जब तक ये ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा, देयर इज नॉट व्हिच इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव थिंग फॉर द मार्केट्स। So this is one way you can actually become certain about the market, that the markets will be positive from this point or negative from this point। Clients के अगर SIPs चल रहे हैं तो don't disturb, this is a good time to buy in। But for वो client जो आपके संग tactical asset allocation कर रहे हैं, जहां पे आप उनके संग ये कर सकते हैं कि नहीं उनको एक लमसम डालना है तो एक बार लिक्विड में डाल के रखें, जब थोड़ा ट्रेंड रिवर्सल हो जाए तब कराएं। या फिर अगर किसी को प्रॉफिट बुकिंग करनी है, रिटायरमेंट डेट आ रहा है, बेटी की शादी आ रही है, गोल अचीव होने वाला है, तो ऐसी सिचुएशन अगर कुछ आ जाती है तो एक्चुअली यू कैन मेक द बुक द प्रॉफिट एंड पुट द मनी इनटू डेट। तो दीज आर सम एक्शंस व्हिच यू कैन टेक, एंड बेस्ड ऑन दैट अगर समझ लीजिए आप गलत भी हो गए, ओके, तो भी कोई बात नहीं, एटलीस्ट यू आर इन डेट, but you have taken a predictable call on this। So this is what is to be done। Any question on this? अगर नहीं समझ में आया, I will explain it once again। समझ में आता है थोड़ा थोड़ा सा। आ गया ना? ठीक है। Anyone else? और कुछ पुराना पास्ट का देखना है डेटा? ऐसा कोई डेटा जिसे आप देखकर कंफर्म करना चाहें कि नहीं, whether this actually happens like that। Would you like to see what happened just before the COVID? Yes or no? Yes, या और कोई डेट है तो बोलिए। यस सर। कोविड के पहले में भी देखिए चार्ट्स 23 March 2020। या देन आई एम कमिंग। उस दिन हाईएस्ट लोएस्ट था पूरा हाँ, सेंसेक्स मैं दिखाता हूँ 23। आपको अभी कि कैसे चार्ट्स ने ऑलरेडी दिखा दिया था, और ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस शोन दैट द मार्केट्स विल फॉल। हम लोग थोड़ा पीछे जा रहे हैं अभी, आ गए हम लोग। February 29 को ही आ गया था, ठीक है। तो ये देखिए February 17 उससे लो, कोई ओटीपी आया है सर आपके उस पे मोबाइल पे? नहीं, मेरे मोबाइल पे कोई ओटीपी नहीं आया है। हाँ, अभी अभी कोई ओटीपी आया है? अच्छा, आप और कोई से बात कर रहे हैं? कोई बात नहीं, ठीक है। ऑन लाइट एसएमएस में आया होगा सर।
ओके सर, म्यूट कर लीजिए आप अपने आप को। या थैंक यू। सो वंस यू सी ऑन तो हेयर इट वाज नो यहीं यहीं पे था, बट आप देखिए फर्स्ट टाइम नीचे आया था 24th Feb, देन 25th Feb, देन 26th Feb। ये निफ्टी था करीबन 11,000 कुछ यहाँ पे, ठीक है, एंड इट वेंट डाउन 3 times। यू कुड हैव इजीली सोल्ड, और यहां से लेके देखिए ना सर, मार्च 26 तारीख तक तो एकदम नीचे आके 7,800 हो गया था, जो कि यहाँ पे था 12,000 से 7,000। तो दिस इज व्हाट हैपेंड। पर इसके बाद में our technical analysis will not tell you to buy immediately, they will not give you this सबसे नीचे वाला level, okay? So there are other parameters which you can be able to do that। but यहाँ के बाद ये देखिए, यहाँ पे आया 4th April, नहीं सॉरी 7th April, 8th April एंड 9th April। सो 9th April को ये 3 दिन कंटिन्यूअसली अप हुआ, तो 9th April को 9,000 था निफ्टी लेवल। सो यू कैन बाई एट दीज लेवल्स। अगर इस लेवल पे आप नहीं लिए, क्योंकि इस समय पूरा का पूरा फियर था मार्केट में, नोबडी वाज इवन विलिंग टू थिंक और लिसन टू एनीवन, ओके। हम लोग का वो क्या कहते हैं ना, कोविड का phase 1 phase 2 आ रहा था, तो नोबडी वाज इंटरेस्टेड। बट आफ्टर दिस आप देखोगे 13-day मूविंग एवरेज के अगर ऊपर में जा रहा है, which means the bigger people, the people in bulk, they have started buying। so when they start buying और when they start selling, ये प्रेशर अपने आप डेवलप हो जाता है और चार्ट अपने आप फॉर्म कर जाते हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर 2001 में जब गिरा था ना, तब मार्केट क्रैश किया था। तो फॉर दैट यू नो व्हाट हैपेंड, all this terrorist activities needs to be funded। so in order to get that fund, you need to have money। so all across the globe people sell। so when you sell, the pressure is created and it is visible। तो दिस इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टडी, बट मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी स्टडी करके आप जो करोगे यहाँ पे, ये इतनी सी एक बात को अगर आप समझ लो, एंड देयर आर अदर 9 more different things which we call that RVCC parameters। आई एम श्योर हर कोई इस ग्रुप में, कोई ना कोई FFF के ग्रुप में आप लोग जरूर हैं। इफ यू आर देयर, यू मस्ट बी रिसीविंग द संडे न्यूज़लेटर्स ऑल्सो, द संडे पॉडकास्ट ऑल्सो। आप उस पॉडकास्ट को सुनिए, उस न्यूज़लेटर को देखिए, और हो सके तो RVCC जरूर कीजिए, और कोई ना कोई तरीके से FFF ग्रुप से जुड़े हुए रहिए, बिकॉज इट इज ऑल अबाउट आप चीजों को कितना सर्टन कर पाते हैं। तो विद अ गुड एसोसिएशन ऑफ पीपल, वेयर यू नो पीपल कैन एक्चुअली मेक थिंग्स सर्टन, कि ये सर्टन है, ऐसा होना है बाजार। जैसे अभी अपने को ये लग रहा है, मोर और लेस 10-12 दिसंबर से लेके अभी तक द सर्टेनिटी हैज नॉट कम, और अभी तक हम लोग उस तरीके से नहीं बोल सकते हैं कि मार्केट यहां से बढ़ जाएगा। आज और कल एवरी फ्राइडे हम लोग एक एनालिसिस करते हैं, वीकली एनालिसिस। तो इस संडे को जो रिपोर्ट न्यूज़लेटर आएगा, उसमें फिर से एनालिसिस करेंगे। सो मे बी टुडेज क्लोजिंग, टुमारोज क्लोजिंग एंड फ्राइडेज क्लोजिंग इज वेरी वेरी क्रूशियल। अगर यहाँ पे ये ब्रेक करके ऊपर निकल जाता है, तो वी मे हैव अ पॉजिटिव साइन, अदरवाइज ये नेगेटिविटी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है सर, अभी आपने जो चार्ट दिखाया था वहां पे आगे जून महीने में 4 बार सेंसेक्स निफ्टी डाउन दिखा रहा था, तो हाँ। उसका एनालिसिस फिर कैसे करेंगे? क्योंकि आपने बोला 3 साइकिल निगेटिव आएगा तो आगे फिर वापस निगेटिव आएगा, मगर वहां पे वैसे नहीं लग रहा था। उसके लिए फिर वो बाकी के पैरामीटर्स हैं, मैं हाँ, आपको यहाँ पे यहाँ एक दिखा रहा हूँ, बाकी ये के पी 8 लिखा है, पैरामीटर्स। पी के आगे, किसके ये आगे? सेंटर में, सेंटर में, ये मई मिड जून में। हाँ, आगे और आगे और आगे। हाँ, हाँ, वहां पे एक, हाँ, 4 निगेटिव आए थे। लेकिन फिर चेंज हो गया। देखिए आप है हाँ। ना, इसके साथ साथ इसीलिए मैं बोल रहा हूं ना, और भी हमारे पैरामीटर्स देखने होंगे। तो ये एक देखिए हम्म। नेगेटिव हुआ है, आप अगर सिर्फ यही चार्ट देखोगे तो आप बेच दोगे, लेकिन फिर आपको तुरंत क्या होगा, 3-4 दिन में वापस से खरीदना होगा। आप अगर इसको फॉलो कर रहे हो तो पूरा फॉलो करो। ये बोलता है बेचो तो बेचो, खरीदो तो खरीदो। तो यहाँ पे आपने यहाँ बेच दिया, लेकिन तुरंत खरीदना भी पड़ेगा, क्योंकि रिवर्स हो सकता है ना, चेंजेस हो ही सकती है। आपके हाथ में सब कुछ नहीं है, कुछ ना कुछ हुआ, कुछ ना कुछ प्रेशर आया, बेच दिया, तो मार्केट में ओवरऑल हो गया, लेकिन फिर यहाँ पे ट्रेंड भी चेंज हो गया।
लेकिन आपने बेचने का तो मान लिया, लेकिन खरीदेगा नहीं माना तो आप नुकसान हो जाएगा आपको, फिर मार्केट बढ़ते रहेगा। तो ये बहुत जरूरी है आपको समझना कि आपने, लेकिन इस दौरान आपके हमारे जो बाकी के 8 पैरामीटर्स थे उनकी वैल्यूएशंस क्या है, या फिर इस समय जब आपने देखा बाकी की वैल्यूएशंस क्या है, वो बाकी के 8 पैरामीटर्स को आप देख के पूरे 9 पैरामीटर्स अगर नेगेटिव हैं तो आप आराम से दिल खोल के बेच लो इक्विटी। और अगर वो 9 के 9 आपको लग रहा है प्लस है तो किसी की मत सुनो, बस दिल खोल के खरीद लो इक्विटी। मेरा कहने का मतलब ये है, आप एक ही चीज को मत देखिए कि भाई एकदम गर्मी के सीजन में एक दिन बारिश हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बारिश का सीजन हो गया। अभी विंटर के सीजन में एक दिन बहुत जोर धूप आ गई, इसका मतलब ये नहीं है कि अभी विंटर चला गया है, सन आ गया है, गर्मी हो गई है। विंटर तो विंटर ही है, मंदी है तो मंदी है, ट्रेंड है तो ट्रेंड खराब है। आपको उसमें बाकी सारे पैरामीटर्स के संग में मिला के आपको देखना होगा। क्लियर? इसके संग में जैसे और एक पैरामीटर है, दिखा देता हूं, उसको कहते हैं हम लोग RSI। ये होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। और इसमें भी क्या होता है ना, थोड़ा सा एक लॉन्ग टर्म का है, वो है 65, वो देखते हैं हम लोग। अभी देखिए ये एक लाइन जो बन रही है ना, ये ऊपर में 70 है, नीचे में 30 है। अगर ये 70 के आसपास है तो आपको मान लेना चाहिए कि यहां से मार्केट गिरने वाला है। और अगर ये 30 के आसपास है मतलब बहुत सस्ता हो गया है, दैट इज द टाइम यू शुड बाय। तो आपने उसके साथ साथ ये चीज भी देखी, लेकिन बीच में कभी कभी है इधर तो ठीक है। अभी देखिए, अच्छा देखते हैं अपने लोग ये उस दिन कहां तक पहुंच गया था ये देखिए। अब अपने लोग यहाँ के बात कर रहे हैं ना फरवरी की, देखिए फरवरी में कहां चला गया था ये RSI, एकदम 30 के नीचे चला गया है। तो अब अगर इतना नीचे आ गया, RSI भी नीचे आ गया है, वो भी नीचे आ गया है, तो आपको बाई करना ही चाहिए ना। अब अगर इतने होने पर भी अगर आप बाई नहीं कर रहे हो तो फिर तो आप भगवान का ही वेट कर रहे हो कि वो आपको बोलेंगे भाई बेटा तुम खरीद ले। तो आप देखिए दोनों लेवल आपको नीचे बाई करने बोल रहे हैं। अभी इस लेवल में क्या है कि यहाँ पे करीबन आप 41 पे थे, तो ऐसा कुछ एक्सट्रीम नहीं आया कि नीचे ले लेते हैं हम लोग या बेच लेते हैं हम लोग और समथिंग लाइक दैट। तो यहाँ पे देखिए एकदम नीचे आ गया, तो यहाँ पे आप खरीदने का लेवल्स बना रहे हैं। और यहाँ पे ये ऊपर से देखिए नीचे जाने का ट्रेंड भी बन रहा है। यहाँ पे ये ऊपर में था यहाँ पे, तो यहाँ से नीचे जा रहा है कंटिन्यूस 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 कंटिन्यूस, और फिर पूरा का पूरा नीचे आ गया ना, उसके नीचे चला गया, और अपने आप ये डॉट्स भी आ जाएंगे। वहां से आप एक प्रेडिक्शन लगा सकते हैं, नहीं ये भी सस्ता है और यहाँ पे हमारा ट्रेंड रिवर्सल हो गया, हम खरीद लेते हैं। लेकिन सिर्फ ये सस्ता है और ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ है तो मत खरीदिए, और ट्रेंड रिवर्सल हो गया है लेकिन यहाँ पे भी सस्ता नहीं है तो मत खरीदिए। दोनों हिसाब से देखिए, ये भी सस्ता है और वो भी महंगा। ठीक है, तो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये एक हो गया रीजन वेर इन नो वी कैन अंडरस्टैंड एंड वी कैन एक्चुअली सी हाउ यू कैन एक्चुअली नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन। सो इसी तरीके से हमारे पैरामीटर्स जो हैं, आपको हम लोग जो न्यूज़लेटर में हर वीक आता है, मैं आपके संग एक शेयर भी कर सकता हूं। कोई भी जो कि आप नहीं तो आप कोई ना कोई ग्रुप में, आई एम श्योर ईच एंड एवरी वन इज इन ग्रुप ऑल्सो, इन सम और अदर ग्रुप। अदरवाइज प्लीज कनेक्ट विथ आवर टीम सो दैट नो आप कोई ना कोई ग्रुप में आ जाएं। मैं एक नंबर भी शेयर कर देता हूं आपके संग। निशांत, निशांत, I will write the number so that no, if you are not in any group, you can connect with him, Nishant or Tushar. They will be able to help you. इसके साथ साथ अभी मैं आप लोगों को एक चीज जो शेयर कर रहा हूं वो है, you all, there are many of us in this group who are already a volatility coach. So volatility coaches के लिए throughout the life, all our games, they have the license to conduct. Next week we will be doing another game. अभी भी मैं थोड़ा सा ये गेम का पार्ट भी करूंगा, लेकिन उससे पहले ये समझा दूं आप लोगों को। So you have the license to conduct these games, earn a fees out of this, become a trainer for NSC and BSc, so that no, you are able to do this, and you can do this program any number of time, जो अभी तक गेम्स हैं और फ्यूचर में जो गेम्स आएंगे उनकी भी।
The second part is you will be able to use all the softwares, all the backend calculators for the whole life. Okay. नहीं तो क्या होता है ना, जैसे ये म्यूचुअल फंड एनालिसिस सॉफ्टवेयर एंड ऑल व्हाटएवर इट इज देयर, सो इफ यू वांट टू, समझ लीजिए और भी दूसरे लोग हैं, तो यू हैव टू पे एन एनुअल सब्सक्रिप्शन रेंजिंग बिटवीन 20,000 रुपीज टू 90,000 रुपीज, अलग अलग लोगों का अलग अलग फीस है. ओके. तो वो सारे के सारे फीस देते हो, कोई आपको क्रिएटिव्स देते हैं, कोई आपको म्यूचुअल फंड एनालिसिस सॉफ्टवेयर देते हैं, कोई आपको इक्विटी एनालिसिस सॉफ्टवेयर देते हैं, कोई आपको फाइनेंशियल प्लानिंग का सॉफ्टवेयर देते हैं, पर यहाँ पे एवरीथिंग यू गेट. सो दैट्स द वे हाउ इट वर्क्स. एंड आप लोग इसके अंदर में, फॉर यू नाउ, ऑल ऑफ यू जो भी मेंबर्स नहीं है, आप एक 7 day ट्रायल ले सकते हो. यू कैन गो टू दिस लॉग इन और वहां पे अपना डिटेल्स डालो. यू विल गेट एन एक्सेस फॉर नेक्स्ट 7 days. आप उसको यूज करो, और उसको यूज करने के लिए भी देयर इज अ वीडियो विच यू कैन सी हाउ टू यूज इट, हाउ टू गेट द मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट. और उसमें आपको अगर बेनिफिट होता है तो you can further connect with us and become a part of the whole tribe like others are there in this group. तो मैं आपको एक गेम का पार्ट दिखा रहा था. अभी हम लोगों ने जो सीखा, मैं उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको पूछता हूँ, ठीक है? एंड मैं गेम को मैंने थोड़ा सा स्लाइड में डाल दिया है, सो दैट नो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर यू टू जस्ट आंसर एंड सी जो हम लोगों ने शेयर किया है वो सही है या गलत है. ठीक है? ये थोड़ा सा शॉर्ट टर्म को लेके है, तो डोंट वरी अबाउट इट. यू कैन एक्चुअली प्रेडिक्ट इट विद अ लॉन्ग टर्म व्यू ऑल्सो. तो सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए ही नहीं है, ये लॉन्ग टर्म के लिए भी है. ओके. सो अभी आपके क्वेश्चन है, इफ यू कैन सी इट ऑन योर स्क्रीन, you have to invest money for 6 months, okay? And Nifty on one particular day was 15,709. उसके बाद वाले दिन ये था, फिर ये था, फिर ये था. Now 13-day moving average ये है. अभी इस सिचुएशन में whether you will invest in equity or not, that's my question. Please type in the chat box whether you will invest yes or no for 6 months. You can see the Nifty levels, you can see the 13-day moving average, you can see the 26-day moving average, you can see the 15-day moving average. What will you do? Please बताइए. Okay, Ketan, I will share the number. Buy. Siddharth say no. Yes. So I've shared the number of Tushar. You all can connect with him for the free trial. And also, so आप लोगों में से some of you are telling, but all of you are not answering. Unmute करके बोलिए ना. Yes, no, कुछ तो बोलिए. सर वो इतना समझ में तो नहीं आता है, लेकिन वो RSI आपने जैसे बोला कि 70 के नीचे है तो बाय करना, मतलब 30 के आसपास है तो बाय करना चाहिए. तो मैं 44 है इसलिए मैंने बोल दिया कि भैया ये वो एक इंडिकेटर का ये देखा मैंने. ओके, चलिए देखते हैं. तो आइए, आपने जो शेयर किया वो क्या था, ये देखिए. यहाँ पे था आपका ये लेवल्स. दिस इज 28 जुलाई 2021. ये 3 दिन कंटिन्यूअसली ऊपर गया और 6 महीने बाद देखिए आपको रिटर्न आया 8.86%. सो अगर आपने इक्विटी में इन्वेस्ट किया है, यू आर पॉजिटिव, यू हैव मेड गुड चॉइस. सो कांग्रेचुलेशंस दीपक. आपका अनुमान, आपका सर्टेनिटी ऑन द प्रेडिक्शन इज एब्सोल्युटली राइट. आपको सीधा एक ही चीज देखना है, 13-day मूविंग एवरेज के ऊपर है कि नीचे है. देखिए पहले दिन नीचे था, उसके बाद में ऊपर चला गया, फिर ऊपर चला गया. तो 13-day मूविंग एवरेज की अगर ऊपर जा रहा है नीचे से, तो ये सर्टेन है कि ये पॉजिटिव है, मार्केट तेजी हो गया है, आपको इन्वेस्ट कर देना चाहिए. और देखिए ये फाइनली 17,000 हुआ 6 महीने में, जो कि 8% का रिटर्न है. सो गुड डिसीजन. आइए नेक्स्ट क्वेश्चन.
ये भी 6 महीने के लिए आपको इन्वेस्ट करना है। निफ्टी इज 11,800, देन 11,900, देन 12,000, और 13 डे मूविंग एवरेज ये क्या करेंगे आप? ऑल्दो यहाँ पे 54, 58, 63 हो गया है, बाय सर। एक्सपेंसिव हो रहा है वो RSI। RSI एक्सपेंसिव हुआ है, लेकिन वो 13 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर है। तो क्या करेंगे बाय करेंगे सर। भाई? बाकी सब I think neutral is better. न्यूट्रल बोल के कुछ नहीं होता है। या आर या पार। तो बाय करेंगे। यस, तो इस क्लास का पर्पस ही तब होगा ना। देखिए सर, न्यूट्रल तो सारे लोग बोल रहे हैं, फिर आपने क्या डिफरेंट बोला? सही जवाब आपका, क्योंकि कंटिन्यूअसली तीनों दिन 13 डे मूविंग एवरेज के ऊपर है। RSI एक्सपेंसिव है लेकिन 70 नहीं है। देखिए यहाँ पे आपके इस लेवल के बाद में ये 70 के ऊपर भी चला गया था। ये देखिए बहुत दिन 70 के ऊपर भी रहा है, लेकिन यहां से फिर ऊपर चला गया, और आपने देखा कि 6 महीने बाद ये 12,000 का 14,000 हो गया, 23% का रिटर्न। ये 2020 नवंबर से लेके मई 2021 तक की कहानी है। सुपर्ब रैली। सो कहने का मतलब है, जब तक ये ट्रेंड रिवर्सल नीचे नहीं आके तोड़ेगा नहीं, गिरेगा नहीं, आपको नहीं लेना है डिसीजन। तेजी खेलिए, और मंदी है तो मंदी खेलिए। ठीक है, चलिए अगला सवाल। केवल 2 महीने का इन्वेस्टमेंट है ये निफ्टी, और ये है 13 डे मूविंग एवरेज। 13 डे मूविंग एवरेज के नीचे है निफ्टी, और नीचे है, फिर नीचे क्या करेंगे आप? ऑल्दो देखिए RSI बहुत ज्यादा महंगा नहीं है। एक्चुअली मेरे सवाल में ही आपको जवाब मिल रहा है, मुझे लग रहा Yes, sir. सही है। है। क्या करेंगे बोलिए? Short, है। sell. सेल करेंगे। आई थिंक दैट्स गुड। तो यस, सेल किया आपने, और नतीजा -7% रिटर्न 2 महीने में। सो इम्पोर्टेंट, देखिए आपको सारी चीजें देखनी है। एकदम सस्ता भी हो रहा है, साथ में ये ट्रेंड को तोड़ रहा है, रिवर्सल हो रहा है, तो आप लोग सेल करेंगे। सर मेरे को एक क्वेश्चन था, हम्म। इज इट यूजफुल फॉर इक्विटी ट्रेडिंग और म्यूचुअल फंड ट्रेडिंग? इक्विटी ट्रेडर्स तो डे ट्रेडिंग के लिए भी इसे यूज करते हैं, हम्म। पर वो लोग कम दिन का डेली RSI, डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखते हैं। हाँ। म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स जो कि लॉन्ग टर्म वाले होते हैं, वो लोगों को लंबे टर्म का देखना चाहिए। 26 डेज, 50 डेज मूविंग एवरेजेस देखने चाहिए। ओके। तो टेक्निकल एनालिसिस में लॉन्ग पीरियड का आता है ना, तब उसके अंदर आपके 2 साल 3 साल के अंदर में एक कॉल आता है या 2 कॉल आते हैं, ऐसे आता है। जैसे कोविड जैसा सिचुएशन आ गया, या कुछ अभी जैसा चल रहा है, तो ये सारी सिचुएशंस में अगर आपको पता चले या आप उसको ट्रेंड कर सकते हैं, तब कर सकते हैं। साल में 2 साल में अगर 1 या 2 अगर कॉल्स आते हैं, तो विच इज गुड आई थिंक। आप इसका इसका नॉलेज कहाँ पे रहेगा? अपना RVCC कर लीजिए। हम्म। RVCC में एक मॉड्यूल इसका है, और बाकी आपको और डिटेल करना है तो बहुत सारे टेक्निकल एनालिसिस्ट होते हैं जो कि 30 आवर्स 15 आवर्स क्लासेस कराते हैं। मैं नहीं कराता, कोई जमाने में कराता था। अभी सिर्फ गेम्स अगर है तो गेम से कनेक्टेड है तो मैं कराता हूँ। तो ओके। बट अदरवाइज दिस इज गुड एनफ। मैंने जो आज शेयर किया आई थिंक, और हम लोगों की और 1-2 वीडियोस मिल जाएगी इसी टॉपिक पे, यू कैन एक्चुअली गो टू दैट। सो इसी तरीके से और ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा मैं। इसका कोई एंड तो है नहीं, आपके दिखते रहिए। आपको फिलहाल मैं दिखा देता हूँ एक और चीज जो कि शायद आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो जो भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं आज, फॉर देम, तो हाउ टू एक्चुअली यूज ऑल दिस। तो ऐसे एक नहीं, कई सारे पैरामीटर्स जो भी हैं, वो सारे के सारे हम लोग यूज कैसे करें, और उन सबको हम लोग किस तरीके से यूटिलाइज करें। तो ये सारी की सारी चीजें जो मैंने कही आपको अभी, जो मैंने आपको वेबसाइट पे भी दिखाई थी, ठीक है। हमारा एक जो है
मेंबरशिप जिसे कहते हैं हम लोग, FFF प्रो 7 डेज के लिए रहेगा। अदरवाइज आपको ये गेम सॉफ्टवेयर वॉलेटिलिटी कोचेस के लिए है। आपको इक्विटी एनालिसिस मिल जाएगा, पूरे फंडामेंटल रिपोर्ट, म्यूचुअल फंड एनालिसिस। ये हमारे पिछले वीक का जो वीडियो है आप वो देख सकते हैं, कैसे आप 5 मिनट के अंदर अंदर में प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि भाई ये फ्लेक्सी कैप फंड ज्यादा अच्छा है ये फ्लेक्सी कैप फंड के कंपैरिजन में। और ये RI के द्वारा आपको बता देता है कि भैया ये फंड अच्छा है। जैसे समझ लीजिए हमारे AI के थ्रू हमें अगर देखना है कि डेट में या इक्विटी में कौन सा, समझ लीजिए इक्विटी फंड में टैक्स प्लान, टैक्स सेविंग में फंडामेंटल्स के हिसाब से, रेशियोज के हिसाब से, सारे डेटास के हिसाब से, लाइक HSBC, मोतीलाल, SBI और फ्रैंकलिन के ये 3 फंड बहुत अच्छे कर रहे हैं। आप इसको चाहें तो PDF में डाउनलोड करें, आपका ब्रांडिंग, आपका लोगो के संग में ये क्लाइंट को आप पूरा डिटेल्स निकाल के शेयर करके भेज सकते हैं। तो इसी तरीके से ये सारी की सारी चीजें आप कर सकते हैं। और उसको करने के लिए ये सारी की सारी चीजें FFF प्रो की ये जो मेंबरशिप है उसके अंदर में अवेलेबल है। ये मैं आपको ये सारी की सारी चीजें जो है दिखा देता हूं। और उसके अलावा आप लोग को ये कैसे करना है ये, लेकिन 7 डेज के लिए आप फ्री है, आप इसे यूज करिए, समझिए। तो FFF प्रो जो होता है नॉर्मली 82,000 का है एनुअली, लेकिन अभी इट इज ओनली अवेलेबल फॉर 50,000 रुपीज फॉर द लाइफ इफ यू वांट टू डू इट। तो दिस इज व्हाट इज देयर। ये एनुअली इतने सारी की सारी चीजें इसमें मिल रही है विच इज 82,000। और लेकिन अभी हम लोग 50,000 में वन टाइम फीस में फुल लाइफ के लिए आपको ये मिल जाएंगे। फिर हमारे VG क्रिएटिव्स हैं, करीबन 2,500 से भी ज्यादा क्रिएटिव्स बने हुए हैं। उसकी अगर सब्सक्रिप्शन लेते हो तो एवरी ईयर 5,000 है। फाइनेंशियल प्लानिंग का एनुअली 18,000 है। एक हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स को बढ़ाने के लिए एक दिन की एक सेशन होती है, वो 17,000 की होती है। कुछ कार्ड गेम्स और बोर्ड गेम्स हैं। और एक कॉन्फ्रेंस है जिसको हम लोग एवरी ईयर करते हैं इकोनॉमिक टाइम्स के संग में, उसका 32,000 है। और एक रिट्रीट होता है जहां पे बॉन्डिंग गेम्स के थ्रू आप लोग एक हिल स्टेशन पे या फिर सी के पास में रह के हम लोग एक रिजॉर्ट में बहुत सारी चीजें एक्टिविटीज करते हैं जो कि सिर्फ वॉलेटिलिटी कोचेस करते हैं। एक हम लोग इस साल और कर रहे हैं NISM के संग में एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम अप्रैल में, जिसकी भी वैल्यू ये होगी 15,000। और एक RBCC NSC के साथ है, ये एक 10,000 का प्रोग्राम है। तो टोटल है ये 1,95,000 हर साल का खर्चा है, अगर कोई ये सारी की सारी चीजें हर साल करता है तो। और हमारे ये जो गेम्स हैं उनका एक्सेस अगर आप लेना चाहते हैं तो इट इज लाइक 1,50,000 वन टाइम फीस। सो दोनों को मिला के एक बार में आपका 3,45,000, और ये हर साल देना पड़ेगा आपको, एवरी ईयर। बट द बेस्ट पार्ट इज अभी के लिए ये जो है 1,95,000 में लाइफ लॉन्ग के लिए है। अभी एज अ वॉलेटिलिटी कोच, इफ यू आर बिकमिंग अ वॉलेटिलिटी कोच, यू गेट ऑल दिस थिंग्स फॉर द होल लाइफ, and that is for 1,95,000. If you want, you can pay this in 4 installments also, or if you can pay in one time also. 4 installments में देंगे तो 2 लाख रुपया देना होगा, which is 50,000 into 4, और एक साथ देंगे तो it is 1,95,000. So this way you become a license holder of all the games. You become a tribe member, volatility coach अपने नाम के बाद आप लिख सकते हैं, RBCC लिख सकते हैं, और टैट बोल की सर्टिफिकेशन है वो लिख सकते हैं। और उसके साथ साथ आप लोगों को इसकी ट्रेनिंग भी दे सकते हैं और उससे फीस प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ये RBCC 10,000 का है, समझ लीजिए आप 100 स्टूडेंट्स को कराते हैं किसी कॉलेज में तो 5 लाख रुपया आपको फीस मिलेगा। NSC को जो फीस मिलता है वो 50% आपको दे देता है। So this is how the whole program runs. So if you want to make 2 लाख इन्वेस्ट करके 2 करोड़ रुपया अगर कमाना चाहते हैं और IAPs बहुत सारा करना चाहते हैं, then you should become a volatility coach. तो ये एक बहुत ही सिंपल और स्मॉल तरीके से मैंने सारा चीज बता दिया आपको, आप कैसे बन सकते हैं। और अगर सिर्फ ये सॉफ्टवेयर चाहिए आपको, एंड इफ यू डोंट वांट टू यूज गेम्स और डू IAPs, then you can become only FFF Pro. FFF Pro also you can become 50,000 में lifetime. Herein you will get all this equity analysis, this technical analysis, and all this parameters and all, everything you will get. So only difference between volatility coach and the FFF Pro is the life membership and the license of the games. Okay, so games which हम लोगों ने all across world के लिए, हर मार्केट के लिए बना सकते हैं। अभी हम लोगों ने सिर्फ इंडिया और ऑस्ट्रेलियन मार्केट्स के लिए बनाया है। So in future we will have these games for other countries also, other stock markets also, और इसमें
एक्सपोनेंशियल में आपका कुछ डाउट है? ओके, any questions? Is it clear? I have shared the number also. But the whole idea is this is one knowledge. बाकी के sessions भी if you all attend or if you see the previous workshops videos, you will be able to grasp a lot of idea on how you can become more certain and you can bring more certainty in your communication. तो मेरा पर्पस यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा certainty अपने communication में लाएं और clients को रियली हेल्प करें उनके वेल्थ को क्रिएट करने में, सो दैट अगर किसी और एडवाइजर या और व्यक्ति के संग में अगर 10 लाख रुपया अगर 12 लाख हो रहा है तो आपके साथ में वो 15 लाख हो. दैट्स द होल आइडिया. ओके सर. और जुड़ना जरूरी है एक कम्युनिटी के संग जहां पे इस तरीके की बातें होती है, इस तरीके की शेयरिंग्स होती हैं, इस तरीके के टूल्स होते हैं, इस तरीके के सॉफ्टवेयर्स हैं या गेम्स हैं, जिससे आपको ये फायदा होता है कि ये सारे गेम्स, टूल्स एंड सॉफ्टवेयर से आप अपने आप को you can keep yourself updated and you can continuously share as a part of the learning. And you can also switch. अभी आप समझ लीजिए FFF Pro member बनते हैं, you can switch it into a life membership also within 1 month. और एक चीज है एनुअल मेंबरशिप है इस FFF Pro का, where you know if you are attending a conference you get a complimentary 1 year annual membership also of FFF Pro. So अगर आपको वो भी नहीं समझ में आता है तो come to the conference, meet lot of people, use it for 1 year, then you can actually become. So the whole idea is just see if it is usable. आप इसको यूज कर सकें और ज्यादा से ज्यादा यूज कर सके तब आपको होगा, क्योंकि अगर आप इसको यूज कर लिए तो ये 2 लाख रुपए आपको 2 करोड़ कमाई दे देगा. यूज नहीं करेंगे तो इट्स जस्ट लाइक बाइंग अ मर्सिडीज. आपने मर्सिडीज तो खरीद ली है लेकिन उसको गैराज में रख के रखे हैं एंड आप उसको चला भी नहीं रहे हैं, उसके इंजन का फायदा नहीं उठा रहे हैं, कोई फायदा नहीं है. यस. एनी क्वेश्चंस? आई एम रेडी एंड हेल्पफुल टू हैप्पी टू आंसर. हमारे बहुत सारे यहाँ पे वॉलेटिलिटी कोचेस भी हैं. प्रशांत जी हमारे लेटेस्ट वॉलेटिलिटी कोच बने हैं सांगली से. वेलकम प्रशांत जी. आप अभी तक डैशबोर्ड और बहुत सारी चीजों को देखे नहीं हैं, बट आई एम श्योर यू विल गो थ्रू दैट एंड वी विल लिसन कि आपने अपना पहला IAP किया है गेम के द्वारा. Shukhendu is also comparatively new volatility coach with us. नितिन जी तो काफी पुराने हैं. सारिका, it's nice to see you सारिका. So happy to see you today after a long time. सारिका is from Delhi and वो बहुत सारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट के भी वर्कशॉप्स कराती है. शी इज अ वेरी गुड कम्युनिकेटर, चीजों को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करती हैं. आई एम श्योर वो गेम्स के थ्रू और ज्यादा से ज्यादा लोगों को एंगेज करेगी, क्योंकि आपका जो ऑलरेडी टैलेंट है उस टैलेंट को अगर हम लोग थोड़ा सा इजी बना के गेम के थ्रू अगर शेयर कर दें तो लोगों का बहुत फायदा होगा. तो हमारा पर्पस यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा कैसे दे सकें. आई थिंक दैट इज द की एरिया. तो उसके लिए हम जो भी हमारे टूल्स हैं, सॉफ्टवेयर्स हैं, we have invested a lot of money, lot of time, lot of technicals. हमारे ऑफिसर्स सब बहुत काम भी करते हैं and we have created a lot of things. और भी अगर आपको कुछ जरूरत है तो प्लीज बोलिए, that can be done. So Sarika, you have been quite busy. I know, I see. No, Kanak sir, thank you so much. आपने वापस मोटिवेट कर दिया मुझे इतनी तारीफ करके. नहीं, आप बहुत अच्छे. मैं आपके रील्स वगैरह देखता हूँ. यू आर रियली रियली अमेजिंग स्टफ यू आर डूइंग. कीप डूइंग दैट. कीप डूइंग दैट. गॉड ब्लेस. थैंक यू. जयराज कदम जी बैंगलोर से हैं. ही इज 80 years old, 80 plus. One of the most senior most volatility coaches in our group, one of the most respected, learned person. With his age and enthusiasm, he is also one who is doing phenomenal work. So that's very very nice to see all of them. Sumanto is from Bakuda, मतलब यहाँ से थोड़ा दूर है, कलकत्ता से. It's around 4 hours of journey. He's also doing good work. Shukhendu, would you like to say something? Shukhendu is also a new কনক জি, नमस्ते. Hello. नमस्ते. নমস্তে কনক জি, ভালো আছেন? খুব ভালো. হ্যাঁ, আমি তো ভেরি অফিসে হ্যাপি। আসুন, ভালোভাবে জিনিসটা বুঝুন.
हम लोग हाँ बंगला हाँ में बात करने लग गए খুব ভালো লাগছে কনকজি। গুড গুড, খুব ভালো এইসব নলেজটাকে ইউজ করুন, আই থিঙ্ক খুব হ্যাঁ ভালো। কনকজি, Yes, নিশান্তের সঙ্গে আমার কথাও হয়েছিল। আমি কি? কিছু কিছু আইপি করি, ঠিক আছে? এটাকে কিভাবে মোটিভেট করব, সেটা আমাকে একটু গাইড করবেন। प्लीज, सर मोस्ट हिंदी मोस्ट में हैप्पी। बोलेंगे तो थोड़ा सा। सर, आप लोगों को सबसे पहले हिम्मत करनी होगी खुद। ये कई बार क्या होता है ना, वही मैंने बोला ना, मर्सिडीज है लेकिन चलाना आपको पड़ेगा। রাইট। मतलब, या फिर ड्राइवर रखिए बट अगेन यू नीड टू ड्राइव इट, इट्स योर कार, इट्स योर, यू हैव गॉट इट, सो यू विल ओनली हैव टू डू इट। और आप बाहर के व्यक्ति को कितनी बार बुलाएंगे? There are so many রাইট। trainers in our industries, but how many times you will call them? एक बार, दो बार, हो गया। But you will have to do it, no? Because your clients, आपके clients तो आपके संग ही connect कर पाते हैं ना। आपके রাইট clients রাইট। को तो आप ही, you are the person for them. So I think that is very, very important. Good to see Mr. Sombit Roy, Khushbu Patel, Ritesh Shah, Bhaskar, Ramchandran, all of you. Please do use this whole backend FFF Pro वाला thing for at least 7 days. जो भी questions हैं, queries हैं, please do ask. I'm sure इसको आप लोग use करेंगे, within 1 year your business should double at least. Okay, अगर 10x नहीं तो 2x तो जरूर हो जाएगा। तो कई बार क्या होता है ना, हम लोग वो चीजें नहीं कर रहे हैं जो थोड़ी बहुत करनी होती है। अगर वो कर लेते हैं, चीजों को समझ लेते हैं, अभी जैसे ये मार्केट है, अभी आपने अगर दिसंबर में अगर ये समझा है तो आप नहीं इन्वेस्ट करा रहे हैं, आप हाइब्रिड या लिक्विड में हैं। लेकिन धीरे 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 अभी अगर अपना ट्रेंड चेंज हो जाता है तो वहां से आप एग्रेसिवली बोलिए, विथ फुल प्रेडिक्शन बोलिए, विथ फुल सर्टेनिटी बोलिए, नहीं सर दिस इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट, प्लीज गेट इट डन। और रिटर्न आती, क्लाइंट हु विल नॉट लाइक मनी ग्रोइंग, एकदम इंस्टेंटली शायद नहीं हो, बट मोर और लेस आप एक रीजनेबल डेटा के संग अगर क्लाइंट्स को शेयर कर रहे हैं, नहीं सर दिस इज द बेस्ट टाइम, आई एम एब्सोल्युटली कन्विंस्ड एंड सर्टन यू शुड इन्वेस्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। और अगर वो देख लेता है 6 महीने में रिटर्न आ गया तो ही विल पुट इन मोर एंड मोर मनी। देखिए, हम लोग कितनी बात कर ले लॉन्ग टर्म, ये वो सब ठीक है, पर क्लाइंट को एक बार लिया इन्वेस्ट और उसके बाद अगर नेगेटिव हो जाता है ना फॉर 6 months, ही इज वेरी मच डिसअपॉइंटेड and he will tell 10 things bad about you also. But yes, you will have to do his behavioral management and all those things. But उसके साथ साथ अगर ये certainty आप दे देते हैं उसको कि नहीं सर यहाँ से बस थोड़े से टाइम में you will also see a good reasonable start of your growth, so he is happy. So please do that also. So modules like this technical analysis is for that. बाकी fundamental analysis is very, very long term. Rebalancing is again a different aspect of the game. So try and play all these games. And we have crossed 5 p.m. So with this, thank you so much. Remain connected. Next Thursday, we will come with another good topic. And till then, have fun. Next Thursday, we will do a lot of calculators. How you can create good reports, beautiful reports from your calculators. How you can motivate your clients for SIPs, step-up SIPs, SWPs and STPs. So uske liye there will be a lot of presentation and I will give you a free PPT also for that, which you can show to your clients and they will really, really be amazed and they will invest with you. Okay? So next Thursday, look forward to see you again. Till then, bye-bye.